نیوز بولیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ پی ڈی ایم اے کا پنجاب کے دریاؤں میں فلڈ بارے الرٹ جاری۔ پنجاب کے مشرقی دریاؤں میں پانی کے اضافے اور سیلاب کا خدشہ ہے۔ 21 جولائی سے پنجاب کے مشرقی دریاؤں میں سیلابی صورتحال بن سکتی ہے۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے کی متعلقہ کمشنرز اور ڈیپٹی کمشنرز محکموں اور افسران کو الرٹ جاری۔ وسیم شہزاد مزید اپڈیٹ کریں گے۔ جی وسیم شہزاد۔ بالکل بات کرتے چلیں اس تمام تر صورتحال کی جس کا اس وقت جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے پنجاب بھر کے اندر کی اگر ہم بات کرتے چلیں تو بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اور تالابوں، نہروں اور جھیلوں میں ہر قسم کی تیراکی پر اب پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ پنجاب بھر میں دفعہ 144 کا نفاذ ہے۔ محکمہ داخلہ کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ اس وقت جاری ہو چکا ہے۔ عوامی مقامات پر بارش کے جمع شدہ پانی میں عمومی طور پر دیکھا گیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ نہاتے ہیں، بچے نہاتے ہیں، ان کے نہانے پر بھی اب دفعہ 144 کا نفاذ ہوگا۔ ڈیموں، دریاؤں، نہروں، جھیلوں، ڈسٹریبیوٹرز میں بلا اجازت کسی قسم کی کوئی کشتی رانی جو ہے وہ اب نہیں ہوگی۔ دفعہ 144 کے تحت تمام پابندیوں کا اطلاق 30 اگست تک حالیہ بارشوں کی وجہ سے رہے گا پابندہ۔ یہ جو پابندی لگائی گئی ہے یہ موجودہ موسمی حالات کے تناظر میں قیمتی انسانی جانوں کی حفاظت کے لیے لگائی گئی ہے۔ بارشوں میں نشیبی علاقوں، گلیوں، کھلی جگہوں پر بارشی پانی کے جمع ہونے سے خاطر خواہ جو اضافہ ہے خطرے کا وہ ہو رہا تھا۔ پنجاب بھر کے ڈیموں، دریاؤں، نہروں، تالابوں اور جھیلوں میں ان دنوں پانی کی سطح عام سطح سے کافی بلند ہو چکی ہے۔ ایسی صورتحال میں تیراکی اور کشتی رانی انسانی زندگی کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے پنجاب بھر میں دفعہ 144 کا نفاذ کیا گیا۔ عوامی آگاہی کے لیے دفعہ 144 کی بھرپور تشہیر جو ہے وہ بھی کی جا رہی ہے تاکہ دیہاتوں اور دور دراز علاقوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں تک بھی یہ آگاہی پہنچ سکے کہ کسی بھی حوالے سے ڈیموں، دریاؤں، نہروں، تالابوں اور جھیلوں میں ہر قسم کی تیراکی جو ہے وہ مکمل طور پر بند ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر بات کرتے چلیں گلیوں کی، کوچوں کی، چوراہوں کی، سڑکوں کی، تو وہاں پر عمومی طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جیسی بارش ہو جاتی ہے تو لوگ جو ہے وہ اس بارش میں بچے جو ہے وہ اس بارش کے اندر جو ہے وہ نہا رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے کوئی بھی جو حادثہ ہے وہ رونما ہو سکتا ہے۔ نشیبی علاقوں کی بات کرتے چلیں تو گلیوں، کھلی جگہوں پر بارش کے جمع ہونے سے بھی اضافہ ہو رہا ہے اور ساتھ پنجاب بھر کے ڈیموں میں جو پانی کی سطح ہے وہ اس وقت بلند ہو چکی ہے۔ جبکہ ملتان کی اگر ہم بات کرتے چلیں تو ملتان کے دریائے چناب کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پانی کی سطح وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی جو جگہیں ہیں، جو باقی مقامات ہیں وہاں پر بھی مکمل طور پر تحفظ کا اعلان جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ محکمہ داخلہ کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ کسی بھی حوالے سے قیمتی انسانی جانوں کا کوئی ضیاع نہ ہو۔ جی وسیم شہزاد اپڈیٹ کرنے کا شکریہ۔ پی ڈی ایم اے کا فلڈ بارے الرٹ جاری ہوتے ہی خوشاب انتظامیہ متحرک۔ ڈیپٹی کمشنر خوشاب فروا عامر کا دریائے جہلم پل کا دورہ۔ ممکنہ سیلابی صورتحال سے بچنے کے لیے مساجدوں میں اعلانات شروع۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ فلڈ الرٹ جاری ہوتے ہی خوشاب انتظامیہ متحرک ہو گئی ہے۔ ڈیپٹی کمشنر خوشاب کا دریائے جہلم پل کا دورہ۔ ممکنہ سیلابی صورتحال سے بچنے کے لیے مساجدوں میں اعلانات شروع۔ ڈیپٹی کمشنر ریونیو، اسسٹنٹ کمشنر خوشاب اور ریسکیو 1122 بھی ہمراہ دریائے جہلم کے تمام بندوں کو چیک کیا گیا۔ ڈی سی کا تمام اداروں کو الرٹ رہنے کا حکم۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ خوشاب میں ڈی سی کا تمام اداروں کو الرٹ رہنے کا حکم۔ دریائے جہلم کے تمام بندوں کو چیک کیا گیا ہے۔ آصف خان ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں، مزید وہ اپڈیٹ کریں گے۔ جی آصف خان اپڈیٹ کیجئے گا۔ جی بالکل، این ڈی ایم اے کی جانب سے دریائے جہلم میں ممکنہ سیلاب کا الرٹ جاری ہونے کے بعد ڈپٹی کمشنر نے دریائے جہلم پر واقع پرانے پل کا دورہ کیا۔ این ڈی ایم اے اور متعلقہ اداروں کی جانب سے بر وقت اقدامات کو یقینی بنانے کے لیے دریائے جہلم کی زد میں آنے والے آس پاس کے گاؤں میں ڈپٹی کمشنر خوشاب کے حکم پر شہریوں کو نقل مکانی کے لیے مسجدوں میں اعلانات کروانے شروع کر دیے گئے ہیں۔ شہریوں کو بر وقت محفوظ مقامات پر پہنچنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔
इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू, असिस्टेंट कमिश्नर खुशाब, इंचार्ज रेस्क्यू 1112 और दीगर महकमों के अफसरान भी मौजूद थे और तमाम अफसरान की जो है छुट्टियां भी इस वक्त हमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने हिफाजती बंदों में मुमकिन खतरात और मौजूदा तैयारियों का तफसीली जायजा लिया। मुतलका महकमों को हदायत जारी की गई कि हिफाजती बंदों को मजबूत बनाया जाए, तमाम मशीनरी और अमला अलर्ट रखा जाए और हर किस्म की इमरजेंसी की सूरत हाल से निपटने के लिए मुमकिन निगरानी और तैयारी यकीनी बनाई जाए। जी, मुमकिन निगरानी और तैयारी यकीनी बनाई जाए। आसिफ खान, अपडेट करने का शुक्रिया। अब आपको बताएं कि कमिश्नर बहावलपुर मुसर्रत जबी का भावनगर एक रोजा दौरा। कमिश्नर ने हेड जालू और दीगर इलाकों का दौरा किया। बारिश के बाद इंतजामात, निकासियाब और सफाई का जायजा लिया। जिला इंतजामिया ने इंतजामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी। तमाम डिस्पोजल स्टेशन फाल हैं, 24 घंटे मॉनिटरिंग की जा रही है। कमिश्नर बहावलपुर की तमाम मुतल्लिका इदारों को फौरी नकासी आब यकीनी बनाने की हिदायत। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कमिश्नर बहावलपुर मुसर्रत जबी का बहावल नगर का एक रोजा दौरा। कमिश्नर ने हेड जालू और दीगर इलाकों का दौरा किया। बारिश के बाद इंतजामात, निकासियाब और सफाई का जायजा लिया। जिला इंतजामिया ने इंतजामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी। चीनी की बढ़ती कीमतों के पेश नजर हुकूमत पंजाब का बर वक्त इकदाम। 4 माह के लिए चीनी की एक्स मिल और परचून की कीमतों का तयन कर दिया गया। डीजी फूड केन कमिश्नर पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल की डीजी फूड को मुकर्ररा कीमतों पर अमल दरामद की हिदायत। जुनेद अनवर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, मजीद उनसे जानेंगे। जी जुनेद अनवर, बताइएगा। चीनी की बढ़ती कीमतों के पेश नजर जो पंजाब हुकूमत ने जो है वो एक एक्शन लिया। 4 माह के लिए चीनी की एक्स मिल और परचून की कीमतों का तयन कर दिया, जबकि डीजी फूड और उसके साथ साथ कैंट कमिश्नर पंजाब ने जो है इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। 14 अगस्त तक जो चीनी की एक्स मिल कीमत है वो 165 रुपए मुकर्रर की गई है नोटिफिकेशन के मुताबिक, जबकि परचून में चीनी जो है वो 14 अगस्त तक 173 रुपए फी किलो फरोख्त होगी। इसी तरह 15 अगस्त से 14 सितंबर तक चीनी की एक्स मिल कीमत 167 रुपए मुकर्रर हुई है, जबकि 15 अगस्त से जो है वो 14 सितंबर तक परचून में चीनी 175 होगी। 15 सितंबर से 59 रुपए होगी और जबकि 15 सितंबर से 14 अक्टूबर तक परचून रेट जो है वो 177 रुपए फी किलो होगा। इसी तरह 15 अक्टूबर से चीनी की एक्स मिल कीमत 171 रुपए मुकर्रर होगी, जिसका भी नोटिफिकेशन जो है इन तमाम कीमतों का नोटिफिकेशन भी होता है। इसी तरह 15 अक्टूबर से परचून में चीनी 169 रुपए फी किलो फरोख्त होगी। इसी वजह से सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल की डीजी फूड को मुकर्ररा कीमतों पर अमल करने की फौरी हिदायत की गई है कि फौरी तौर पर मार्केट में जो चीनी के ये रेट्स है इन पर अमल दरामद को जो है यकीनी बनाया जाए। जी, अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। जुनेद अनवर, अपडेट करने का शुक्रिया। मुल्तान में सब्जी और फलों की कीमतें जिला इंतजामिया के काबू से बाहर। सरकारी निर्खनामा बराए नाम रह गया, जबकि बाजार में खुद साख्ता महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। इंतजामिया की बेबसी ने शहरियों को शदीद मुश्किलात में मुब्तला कर दिया है। शहर ओलिया में सब्जियों और फलों के दाम बेलगाम। इंतजामिया आम आदमी को महंगाई से रिलीफ दिलवाने में नाकाम। खुद साख्ता महंगाई प्राइस कंट्रोल कमेटियों के कंट्रोल से बाहर। सरकारी निर्खनामे में अदरक 410 और लहसुन 220 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में अदरक 570 और लहसुन 300 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। सरकारी रेट लिस्ट में हरी मिर्च 110, प्याज 40 और टमाटर 53 रुपए फी किलो मुकर्रर है। मार्केट में हरी मिर्च 150, प्याज 60 और टमाटर 70 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। भिंडी 60, शिमला मिर्च 240 और करेले 160 रुपए फी किलो दस्तयाब हैं। फलों में सेब काला कोल्हू 700 रुपए, सेब गाजा 450, आलू बुखारा 500 और चेरी 800 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। नाशपाती 350, खुबानी 300 और जामन 200 रुपए फी किलो दस्तयाब है। आम चौसा नवाब 250, अनवर टोर 300 और सिंदड़ी 200 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। अनार 600 और गर्मा 200 रुपए फी किलो, जबकि केले 180 रुपए फी दर्जन है। कैमरामैन जैन के साथ राणा बिलाल यूनस, मुल्तान। वासा मुल्तान से 2 अफसरान की एमडीए वापसी। डायरेक्टर इंजीनियरिंग मुनाम सैद, मोना मुमताज असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल को चार्ज छोड़ने का हुक्म। आपको अपडेट कर रहे हैं कि
वासा मुल्तान ने 2 अफसरान की खिदमात एमडीए को वापस कर दी। डायरेक्टर इंजीनियरिंग मुनाम सईद को चार्ज छोड़ने का हुक्म। मुना मुमताज असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल को भी चार्ज छोड़ने का हुक्म दिया गया। दोनों अफसरान को फौरी एमडीए रिपोर्ट करने के अहकामात हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वासा मुल्तान ने 2 अफसरान की खिदमात एमडीए को वापस कर दी हैं। डायरेक्टर इंजीनियरिंग मुनाम सईद को चार्ज छोड़ने का हुक्म दिया गया है। मोना मुमताज असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल को भी चार्ज छोड़ने का हुक्म दिया गया है। मियाँचन्नू असिस्टेंट कमिश्नर साजिदा रज़ाक का मुख्तलिफ बाजारों का दौरा। इसी ने अमला म्यूनसिपल कमेटी के हमरा आर्जी तजावुजात को मौके पर ही खत्म करवाया। साजिदा रज़ाक ने कई दुकानों को भी सील कर दिया। परमानेंट तजावुजात को भी मरहलावार खत्म करवाया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर का ऐसा कहना था। आइंदा भी ये कार्रवाइयां बिला तफरीक जारी रहेंगी। साजिदा रज़ाक का ऐसा कहना था। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मियाँचन्नू असिस्टेंट कमिश्नर साजिदा रज़ाक का मुख्तलिफ बाजारों का दौरा। एसी ने अमला म्यूनसिपल कमेटी के हमरा आर्जी तजावुजात को मौका पर ही खत्म करवाया। अब आपको बताएं कि मुल्तान इंतजामिया की नाअहली तरक्याती काम सुस्तरवी का शिकार। नॉर्दर्न बाईपास से नगाना चौक जाने वाले रोड की अपग्रेडेशन का काम मुकम्मल न हो सका। रोड पर तरक्याती काम नवंबर 2024 में शुरू हुआ था। ओन अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद अपडेट उनसे जानेंगे। आज बिल्कुल, अगर हम आपको जो है मुल्तान शहर में तरक्याती कामों के हवाले से अपडेट करते चलें तो मुल्तान शहर में जो तरक्याती काम है काफ़ी हद तक सुस्त रवि का शिकार हैं। इस वक्त जो है हम नॉर्दर्न बाईपास पर मौजूद हैं। नॉर्दर्न बाईपास से जो रोड जो है साउथ चौक की तरफ जाता है तो मुकम्मल रोड जो है ये अरसा दराज से टूट फूट का शिकार था और इस हवाले से आप देख सकते हैं सामने यहाँ पर बोर्ड भी नस्ब किया गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज का सड़कें बहाल पंजाब खुशहाल का ये बोर्ड है और आप देख सकते हैं यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि 9 किलोमीटर का जो ये रोड है तखमीना लागत जो है 1 अरब 2 करोड़ 85 लाख जो है यहाँ पर मौजूद है। तारीख आगाज जो है इस रोड का नवंबर 2024 में था, जबकि कंप्लीट जो है ये रोड जून 2025 में होना था। रोड की अब क्या हालत है हम आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि रोड जो है जो जून 2025 में मुकम्मल होना था उसकी हालत आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये रोड जो उखाड़ कर रख दिया गया इंतजामिया की जानिब से। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है बजरी मौजूद है जिसकी वजह से जो ये रोड है मुकम्मल तौर पर जो है यहाँ पर कंप्लीट नहीं किया जा सका इंतजामिया की जानिब से। आगे जो ये रोड है आप देख सकते हैं जिस तरह से इसे तोड़ उखाड़ कर रख दिया गया इंतजामिया की जानिब से। तो ये रोड जो है इस वक्त डांसिंग रोड बन चुका है। काफी हद तक जो है कोई भी यहाँ से गाड़ी गुजरेगी आप देख सकते हैं किस तरह से फंबलिंग करके ही गाड़ी यहाँ से गुजरती है, टायर ब्रस्ट हो जाते हैं और आप देखें तो यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशानी का सामना है। जबकि वजीर आला मरियम नवाज की तख्ती तो लगा दी गई है, वजीर आला मरियम नवाज की कंप्लीशन डेट की तख्ती भी यहाँ लग चुकी है, नस्ब हो चुकी है, मगर उसके बावजूद जो है रोड मुकम्मल ना हो सका और इंतजामिया की ये गफलत की वजह से आप देख सकते हैं कि जो मुकम्मल होना था पिछले महीने रोड वो ताहाल जो है 70% भी वर्क उसका कंप्लीट नहीं हो सका। आप दूर दूर तक अगर आप देखें तो आपको ये रोड मुकम्मल नजर नहीं आएगा। गर्दो गुबार धूल मट्टी उड़ने की वजह से जो है जो शहरी यहाँ से गुजरते हैं वो यहाँ पर जो है उन्हें बड़ी तकलीफ और परेशानी का सामना रहता है। कुछ शहरी यहाँ से गुजर रहे हैं तो हमारे साथ मौजूद भी हैं। भाईजान बताइएगा कि ये रोड जो है गुज़िश्ता माह कंप्लीट होना था, मगर अगर हम बात करें इंतजामिया के हवाले से तो जो डेट वो देते हैं किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाते। यहाँ से गुजरे धूल मट्टी घर तो बाहर से कितनी परेशानी का सामना रहता है? काफ़ी बार जो है ना गुजर हुआ है यहाँ से, हमारा डेली का यहाँ की हमारी यही रिहाइश है। तो लेकिन ये है कि हमें नहीं लगता कि ये कभी जो है ना इस तरह का जो है ना ये सिस्टम कर सकते हैं, प्रोजेक्ट जो है ना नहीं कर सकते। इंतजामिया से मुतालबा क्या करेंगे? स्पेशली वजीर आला मरियम नवाज ने अपनी तख्ती भी यहाँ लगवा दी कंप्लीट की, क्या मुतालबा करेंगे? बस ये कहेंगे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा दें, रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमारी रिहाइश है इधर की। लोग गिरते हैं बल्कि स्लिप होते हैं, रोड जो ऐसा है आपके सामने। एक्सीडेंट्स में भी इजाफा हो रहा है लगभग तकरीबन शायद, लेकिन ये है कि अगर ये बन जाता है ना तो ये सहूलियात के लिए ठीक है, क्योंकि ये रोड है ज़्यादा चलता रोड है और आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो आमद-ओ-रफ्त है वो भी ज़्यादा है बड़ी। अगर ये जितनी जल्दी अच्छा मतलब ज़्यादा बन जाएगा, जितनी जल्दी बन जाएगा वो उतना ही अपना यानी कि आवाम का फ़ायदा और किसी का नहीं। और नवाज अपडेट करने का शुक्रिया।
ہائی کورٹ ملتان بینچ نے ملزم محمد شفیق کی ضمانت قبل از گرفتاری 6 اگست تک منظور کر لی۔ ایڈیشنل سیشن جج میاں چنو نے قبل ازیں محمد شفیق کی ضمانت مسترد کی تھی۔ محمد شفیق کے بیٹے محسن اور مدثر کی ضمانت پہلے ہی کنفرم ہو چکی ہے۔ درخواست گزار وکلاء کا کہنا تھا بجلی چوری کا مقدمہ ذاتی دشمنی پر درج کرایا گیا۔ ایس ڈی او تلمبہ ذوالفقار علی نے مقدمہ درج کرایا۔